Hello students. In last lecture we have discussed about the Michaelis Menton equation, its derivation. Now in this lecture we are going to discuss about the modified form of the Michaelis Menton equation, which is called as the Briggs and Haldane equation. It was introduced in the year 1925 by the scientists George Briggs and J.B.S. Haldane. So it is known as the Briggs and Haldane equation. Why it is known as the modified equation? Because the base of this Briggs and Haldane equation is the derivation, equation. The steps are somewhat similar with a slight difference. So it is known as the modified equation. Means we have modified the Michaelis Menton equation. So the name is been given modified equation. Now it uses the steady state approach. Okay, Briggs and Haldane equation uses the steady state approach. Now here steady state approach is the ES complex. Now what is the steady state approach? Steady state approach, it states that rate at which complex is being formed from E and S. Okay, rate at which complex means this ES complex is being formed from E enzyme and the S substrate is equal to rate at which it is consumed by being broken down to E plus P. Means the rate at which this ES is formed is equal to rate at which it is been consumed to form the product. Okay, तो ये और ये दोनों इक्वल है. फॉर्मेशन एंड द कंजम्पशन ऑफ दिस ES टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज इक्वल. But in this reaction or in this Briggs and Haldane equation, the reverse reaction is been ignored. Means जो प्रोडक्ट से फिर से ES कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है वो इग्नोर किया गया है. माइकलिस मेंटेन में भी वो इग्नोर किया गया है और ब्रिग्स एंड हाल्डन में भी वो इग्नोर किया गया है. ओके, तो इसमें नया क्या है? ब्रिग्स एंड हाल्डन में नया क्या है? तो ही इंट्रोड्यूस्ड that ES will not be always in the less concentration. There will be point where ES will break down into enzyme plus product. मीन्स अभी माइकलिस मेंटेन में क्या था? माइकलिस मेंटेन में हमने सिर्फ यहाँ तक रिएक्शन के डेरिवेशंस देखे. ओके, इन माइकलिस मेंटन वी हैव जस्ट सॉन दैट माइकलिस मेंटन ने क्या स्टेट किया था कि जो ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इट इज वेरी इन द लेस अमाउंट सो दैट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. बट इन ब्रिग्स एंड हाल्डन इक्वेशन इट इज बीन स्टेट दैट ES कॉम्प्लेक्स इतना भी कम नहीं है कि देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. सो इन दिस ब्रिग्स एंड हाल्डन इक्वेशन दिस ES कॉम्प्लेक्स इज बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बाय द कांस्टेंट रेट कांस्टेंट K2. तो इतना मॉडिफिकेशन किया गया है ब्रिग्स एंड हाल्डन ने. बाकी का इक्वेशन सेम है. सो इट इज नोन एज द मॉडिफाइड इक्वेशन. बिफोर okay, we will directly see now derivation of this Briggs and Haldane equation. Okay, so let's start with the Briggs and Haldane equation. This is the general reaction where enzyme plus substrate has been converted into enzyme substrate and this enzyme substrate has been converted into the product. Now here rate of formation of ES is equal to K1 free enzyme concentration plus free substrate concentration, which is same as that of the equation. Rate of breakdown of ES is equal to breakdown. Now here which has been product in the second step it act as the substrate. So K minus 1 enzyme substrate is been converted into enzyme substrate plus K2 ES. मतलब प्रोडक्ट से फिर से क्या फॉर्म हुआ है? ES. ओके, सो दिस इज द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES विच इज सेम एज दैट ऑफ द माइकलिस मेंटन. जस्ट देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस K2 ES बिकॉज ES से यहाँ पर फिर से क्या फॉर्म हो रहा है? प्रोडक्ट. ओके, एंड दिस प्रोडक्ट इज बिन this product is been back converted into the ES but this reaction is been ignored. okay, तो K2 ES ये आपको ध्यान में रखना है. now steady state approach क्या है? rate of formation of ES is equal to the rate of breakdown of ES. now we will start solving this derivation. rate of formation of ES क्या है? K1 concentration of E concentration of S is equal to K minus 1 concentration of ES plus K2 concentration of ES. ठीक है, this is the what we have wrote here. हमने क्या किया है? combine किया है. अब यहाँ पर हम ES कॉमन ले सकते हैं. ओके, टेकिंग ES कॉमन, लेट मी राइट. तो हमें मिलेगा
K1 concentration of E into concentration of S is equal to ES K-1 प्लस K2, ये ब्रैकेट में हम लिखते हैं, ठीक है। अभी हम K के टर्म्स वन साइड में ले लेते हैं, K टर्म्स ऑन वन साइड, on one side. So what we will get, K-1 प्लस K2 अपॉन ये एक है, ठीक है, अपॉन K1 इज इक्वल टू बाकी का सेम एज इट इज, ई टर्म हम एक साइड में लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एस। ओके, हमने सिर्फ क्या किया है यहाँ पर, के टर्म्स साइड में ले लिया है एंड देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एस। नाउ हम इसके जगह पर क्या डालेंगे, कांस्टेंट के एम। ओके, वी विल, इसके जगह हम डालेंगे के एम। सो आवर इक्वेशन विल बिकम के एम इज इक्वल टू concentration of E into concentration of S upon concentration of ES, ठीक है। यहाँ पर Km है आपका माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पर आपका जो Km है इट इज द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। So why it is known as the Michaelis Menton constant? Why not Briggs and Haldane constant? Because इसका जो बेस है ये Michaelis Menton का ही है। यहाँ पर सिर्फ हमने Michaelis Menton इक्वेशन मॉडिफाई किया है, बिकॉज यहाँ पर ये सेकेंड रिएक्शन कंसिडर की गई है। ओके, ये सेकेंड रिएक्शन यहाँ पर कंसिडर की गई है जो Michaelis Menton में कंसिडर नहीं की गई थी, ठीक है। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट स्टेप। अब हमें यहाँ पर मिल चुका है Km, सो वी विल गिव दिस एज द इक्वेशन 1, हम इसे बोलेंगे। लेट मी राइट हियर इक्वेशन 1, मैं यहाँ लिख देती हूँ। लेट मी टेक दिस पिक्चर। हमें इक्वेशन 1 क्या मिला था, Km इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन concentration of ES. Okay, that was our equation 1, ठीक है, ये हमें मिला था इक्वेशन 1। नाउ सेम एज दैट ऑफ द Michaelis Menton equation, here we will consider the total enzyme, that is E0 is equal to concentration of E plus concentration of एंजाइम सबस्ट्रेट। ओके, टोटल एंजाइम कैसे हम बोलते हैं, फ्री एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बाउंड एंजाइम, ठीक है। वी विल रीअरेंज इट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES, ठीक है। अब हम ई की वैल्यू कहाँ डालेंगे, इन इक्वेशन 1। सो पुट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो हमें क्या मिलेगा, Km इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन ES। आई होप यू आर विथ मी। नाउ अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S मल्टीप्लाई करेंगे विथ ईच टर्म। सो वी विल गेट E0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S माइनस ES इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES, ठीक है। हमने ईच टर्म मल्टीप्लाई की है। नाउ दिस Km यहाँ पर आएगा, मतलब Km इंटू ES करेंगे हम। सो Km इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0 इंटू S माइनस ES इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S। इट इज़ वेरी सिंपल, सेम एज दैट ऑफ द Michaelis Menton, सिर्फ यहाँ पर Km में डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम we will take this term और we will rearrange, हम यहाँ पर क्या करेंगे, rearrange करेंगे। let me write, we have rearranged this term, तो हमें मिलता है E0 into ES is equal to Km concentration of ES minus will convert into plus ES into concentration of S, ठीक है। हमने rearrange किया है। अब यहाँ पर हम ES कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। so we will take ES कॉमन, हमें मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S इज इक्वल टू ES कॉमन ले लिया है, एंड Km प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, ठीक है, यही लिख देती हूँ मैं।
सो ये हमें मिलता है ES कॉमन लेने के बाद. नाउ ये हमें रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा ES is equal to concentration of total enzyme into concentration of substrate upon Km plus concentration of S. ओके, ये हमें मिल जाती है एंजाइम सबस्ट्रेट की वैल्यू. ओके, नाउ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. अब हमें एंजाइम सबस्ट्रेट इज फर्दर बीन कन्वर्टेड इनटू द E प्लस पी बाय द K2. ओके, तो V0 कितना आएगा, K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES. वो हमने रिएक्शन जो देखी हो कि E प्लस पी फॉर्म हो रहा है, किससे फॉर्म हो रहा है, बाय द एंजाइम सबस्ट्रेट विद द रेट कांस्टेंट K2. Okay, now what we will do, we will put the value of ES, okay, into the V0. तो हमें कितना मिलेगा, V0 is equal to K2 concentration of E0 into concentration of S upon Km plus concentration of S. ये हमें मिल जाती है इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू के, दैट इज दी V0. सिर्फ हमने ES की जगह ये डाला है. अब हमें फाइंड करना है Vmax. नाउ Vmax क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी टू रीच द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो Vmax क्या है, K2 टू रीच द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स टोटल एंजाइम, पूरा एंजाइम ऑक्यूपाई होगा है. सो हम लिख सकते हैं K2 इंटू E0 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0. ओके, सो वी विल जस्ट पुट, अब ये K2 E0 के जगह हम क्या डालेंगे, Vmax. सो आवर इक्वेशन विल बिकम V0 is equal to Vmax into concentration of S upon Km plus concentration of S. So this is our final, we can say, Briggs Haldone equation, or it is also known as modified MM equation. गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हैं, अगर आपने कंपैरिजन किया माइकलिस मेंटन में और ब्रिग्स हाल्डन में, सो यहाँ पर Km Michaelis Menton constant use हुआ है, just that is the difference, the rest is the same. Now we will plot the graph of this modified MM equation, or we can say Briggs Haldane equation. ठीक है, so let's plot the graph. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए द इक्वेशन हम यहाँ पर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं हम इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन मिला है. सो इक्वेशन वी हैव गॉट V0 is equal to Vmax into concentration of S upon Km plus concentration of S. Okay, so ये इक्वेशन हमें फाइनली मिलता है. So let's plot the graph. ओके, ये है आपका सिंपल ग्राफ. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. यहाँ पर मैं लिखूंगी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर होगा आपका रिएक्शन वेलोसिटी. ओके, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. सो ऑन y एक्सिस आई हैव शोन रिएक्शन वेलोसिटी, ऑन x एक्सिस आई हैव शोन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. तो आपका ये जो ग्राफ होगा, इट विल बी इन दी हाइपरबोलिक फॉर्म. ओके, ये आपका जो ग्राफ है, it will be in the hyperbolic form. This curve is known as the hyperbolic curve. Okay, और ये जो है यहाँ पर जो आपको स्टेडी स्टेट मिला है, कांस्टेंट मिला है, तो इट इज़ नोन एज दी Vmax. ओके, ये आपको मिला है Vmax, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. मतलब यहाँ पर सबस्ट्रेट इज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द एंजाइम. सो दिस इज दी Vmax. और यहाँ पर है आपका Vmax अपॉन 2 और हाफ Vmax आप बोल सकते हैं. ठीक है, इट इज़ दी Vmax अपॉन 2 विच रीचेज दी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और ये है आपका Km. ओके, Km Vmax अपॉन 2. सो दिस इज ओवरऑल ग्राफ. और आपका जो रिएक्शन वेलोसिटी है, वो रिएक्शन वेलोसिटी है यहाँ पर, दैट इज V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन Km. ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल अबाउट दी माइकलिस मेंटन ग्राफ और मॉडिफाइड माइकलिस मेंटन ग्राफ. ठीक है, यहाँ पर Vmax से मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड बाय द सिस्टम एट मैक्सिमम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सबस्ट्रेट ने कंप्लीटली एंजाइम को ऑक्यूपाई किया गया है, द रिएक्शन इज बिन स्टॉप्ड. ओके, सो दैट इज द
means we can't say reaction has been stopped, but here it has been achieved at the maximum level, so it is known as the Vmax. और यहाँ पर है Km. Km is the substrate concentration at which reaction velocity is 50% of the Vmax. Okay, 50% of the Vmax. So यहाँ पर Vmax by 2 है, ठीक है. So that is the overall hyperbolic curve of the Michaelis Menton or modified Michaelis Menton equation. So yes, that was this. Thank you.